Yes. So our next chapter is called fundamental unit of life. और life का मतलब क्या होता है? Life we all know. Life makes living things different from non-living things. Life is if any substance is having life in it, that we call an organism, right? तो नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग में आई डोंट थिंक तुम्हें बताने की जरूरत है बिकॉज यू आर 9th क्लास स्टूडेंट और ये चीज तो बहुत ही छोटे लेवल पे बताई जाती है, राइट? तो बात ये रही कि व्हाट मेक्स अ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग, क्या चीज लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाती है और ऐसा क्या नहीं है नॉन लिविंग थिंग्स में जो वो लाइफ नहीं ले पाते, दैट मींस दे आर नॉट लिविंग, दे आर नॉट कंसिडर्ड लिविंग. सो दिस चैप्टर विल डील विद लिविंग ऑर्गेनिजम्स and living organism का mainly fundamental unit, that is the cell. So the thing is, any organism that is here on earth, कोई भी एक organism, चाहे वो एक duck हो या एक snake हो या कोई plant हो, कोई भी organism जो इस लाइफ जो इस अर्थ पे आया है, तो that organism has one common thing in their body structure, and that is all of them are made up of a small unit known as cell. So the thing is, in our hands there are millions of cells. In every part of our body there are cells, and So your voice is breaking. not only in us but also in living organisms. Yeah, what are you saying, Ishan? Sir, Yes, so your voice is breaking. my voice is breaking. Is my voice breaking or is it clear? Sir, it is clear. Clear. So बीच बीच में जा रही है. कोई बात नहीं, वो तुम्हारे नेटवर्क में थोड़ा इशू आ रहा होगा. दिवेश, आर यू एबल टू हियर मी? Yes. ठीक है. प्रवीण, कविश, कोई आवाज में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? No, sir. No, sir, no problem. ऑलराइट. ईशान, थोड़ा सा नेटवर्क चेक करो अपना. Yes. All right. So the thing is, now we are going to deal with this small fundamental unit of life that makes every organism living, that is cell. So what is actually cell? We are going to study in this chapter. सबसे पहले the cell. While we are examining a thin piece of cork, अब what is cork? देखो, cork क्या होता है? Cork is a small piece of, you can say, wood. Wood का एक small piece होता है, that is cork. It is used in laboratory to seal the test tubes. हमारे लैब्स में बहुत सारी टेस्ट ट्यूब होती हैं, तो टेस्ट ट्यूब्स के अंदर हम केमिकल रिएक्शंस करते हैं. दीज केमिकल रिएक्शंस हम कभी चाहते हैं कि वो जो केमिकल्स हैं वो उस टेस्ट ट्यूब के अंदर ही रहें. तो अगर हम इसको टेस्ट ट्यूब को बंद करना चाहते हैं तो वी यूज अ पीस ऑफ वुड, और ये जो पीस ऑफ वुड होता है दैट इज कॉल्ड अ कॉर्क. Alright, so a thin piece of cork So a piece of cork is used to seal used to seal the test tubes. Test tube को seal करने में काम आता है. So this is a piece of
wood extracted from plants. Now there was a scientist, एक scientist था, and this scientist is called Robert Hooke. So while he was working in a laboratory, Robert Hooke found out कि जो कॉर्क है उस कॉर्क के स्ट्रक्चर को उसने ध्यान से देखा. तो he observed the piece of a cork और कॉर्क के अंदर he saw that there are small units. कॉर्क को जब उसने माइक्रोस्कोप से देखा he found कि there are small units, बहुत छोटे-छोटे यूनिट्स में कॉर्क is divided. तो he was able to obtain this smaller surfaces, small units को उसने बहुत zoom करके देखा, like we zoom from a camera, and this zoom allowed him to observe. He became the first one to observe cell, and he named it the cell. So Robert Hooke was the first to discover the cell. He was the first one to discover cell. और कहाँ पे discover किया था? In the cork. Cork क्या होता है? It's a piece of wood. अब how does cell come into this cork? Because cork was a part of a plant. Cork पहले किसका part था? Cork was a piece of a plant क्योंकि wood जो है comes from trees. तो plants are living, क्योंकि plants living है तो उनके अंदर जो cork होता है वो cork भी पहले living था but अब dead है. बट जो चीज पहले लिविंग थी उसके अंदर वो लिविंग की यूनिट होनी चाहिए. दैट इज व्हाई द कॉर्क इज स्टिल हैविंग द सेल. So do you tell me, is this point clear? How does cork has cell and who discovered it first? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Divij, is this clear? Yes, sir. ठीक है. So the thing is, it is written over here, if you will observe, it is written over here that cork is a substance that comes from the bark of the tree. यानी कि वो wood की बजाय they use a more scientific term, that is the bark. bark क्या होता है? जो पेड़ की ऊपर छाल होती है, that is called the bark. ठीक है. अब the thing is, Robert Hooke called these boxes cells. तो Robert Hooke ने इसको नाम भी दिया, that is cells. And cell का मतलब क्या है? Cell actually means a Latin word for a little room. एक छोटे रूम के लिए Latin का word है cell. So that is why he used this word to describe a small unit जो कि एक रूम की तरह उसे लग रहा था, and he described it as cell. ठीक है. So this is our first question for today, that who discovered cork? नहीं, who discovered cell and how? ठीक है. Then we come to second question. अब बात आती है माइक्रोस्कोप की. तो what is a microscope? तुमने माइक्रोस्कोप लैब में देखा कभी स्कूल में? Yes, sir. सर चलाया हुआ लैबोरेटरी में. चलाया हुआ है. Anyone else? ईशान तुमने देखा है या कविश? No. No. तो बस एक बार यूज करता थोड़ा सा. एक बार यूज किया. No, sir. अच्छा, देखिए. अब it is difficult to explain to you what a microscope is, but still I will try. देखो, माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप के अंदर there are different parts. और ये पार्ट्स के सबसे पहला पार्ट माइक्रोस्कोप का है हमारा आईपीस. आईपीस का मतलब होता है जैसे हमारे चश्मे होते हैं, चश्मों से हम देखते हैं, इसी तरीके से हम आईपीस से देखते हैं. We observe different things from this eyepiece. अगर मुझे कुछ भी ऑब्जर्व करना है वो आईपीस से मैं देखूंगा. तो मैं आईज आर एक्चुअली हियर, मेरी आईज यहाँ पे होंगी. ठीक है. तो द थिंग इज, अब अगर ये यहाँ से मैं आईज के थ्रू देखूंगा तो ये जो पार्ट है इट इज कॉल्ड द बॉडी ट्यूब. बॉडी ट्यूब में क्या होता है? देयर आर लेंसेज इनसाइड इट. इस माइक्रोस्कोप के अंदर यहाँ पे लेंसेज होंगे और एक लेंस यहाँ पे भी होता है. देयर इज अनदर लेंस हियर. ठीक है. अब ये लेंसेज क्या करते हैं? जैसे कैमरा के लेंसेज होते हैं, दे कैन जूम अराउंड और 50-100 टाइम्स तक जूम कर सकते हैं. उसी तरीके से ये भी जूम कर सकते हैं. इसके अंदर जो लेंसेज लगे हैं दे कैन जूम. अभी किस चीज से जूम करते हैं? दे जूम ऑन अ पीस जो तुम उसके अंदर फिट करते हो. दिस पीस इज कॉल्ड अ स्लाइड. फॉर एग्जांपल, आई वांट टू सी अ बैक्टीरिया. तो एक ग्लास की स्लाइड होती है, एक स्लाइड होती है ग्लास. इस ग्लास की स्लाइड के ऊपर व्हाट डू? वी पुट अ सैंपल ऑफ बैक्टीरिया. जैसे फॉर एग्जांपल एक सॉइल का सैंपल लिया या किसी चीज का सैंपल लिया, उस जिसमें मुझे ऑब्जर्व करना है कि बैक्टीरिया है या नहीं. कर्ड में भी बैक्टीरिया होता है. तो
हम उसका सैंपल इसमें रख सकते हैं। अब उस स्लाइड को हम फिट कर देते हैं यहाँ पे। यू कैन सी ओवर हियर, देखो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो देयर इज अ स्लाइड पुट इनसाइड दिस माइक्रोस्कोप। ये ग्लास की स्लाइड है और इसके बीचों बीच यहाँ पे तुम्हें सैंपल भी दिख रहा होगा, ठीक है। अब इस सैंपल के थ्रू देखो, अब होता क्या है, एक लाइट का सोर्स होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन यूज सनलाइट। तो जो लाइट का सोर्स है वो यहाँ से आता है नीचे से, और लाइट का सोर्स एक मिरर के थ्रू रिफ्लेक्ट होते हुए किसके पास आता है, इट कम्स टू दी सैंपल। तो इस लाइट के आने से जो सैंपल है इट गेट्स इल्यूमिनेटेड। इल्यूमिनेटेड मतलब उसमें रोशनी आ जाती है। तो जो बहुत अंधेरा होता है बीच में, वो अंधेरे जो होता है, जो छोटे छोटे सैंपल के बीच में दो ऑब्जेक्ट के, दो बैक्टीरिया के बीच में लाइट नहीं आएगी, वो लाइट हमने किसी लाइट के सोर्स से मिरर के थ्रू यहाँ पे रिफ्लेक्ट कराया। अब यहाँ पे जब लाइट आ गई तो ये लाइट इस सैंपल से पास होते हुए तुम्हारी आंखों में आएगी, बिकॉज यू आर सीइंग अबव। तुम ऊपर से देख रहे हो, तुम्हारी आंखें ऊपर है, ये लाइट यहाँ से पास होते हुए तुम्हारी आंखों पे आएगी। तो जो लाइट जहां से भी आएगी वो लाइट उसके साथ साथ वो सैंपल की इमेज लेके आएगी, बिकॉज वो सैंपल से पास होते हुए आ रही है लाइट। तो दिस, और ये लेंस क्या करेगा, लेंस उसको जूम कर देगा, तो यू विल सी अ 50 to 100 टाइम्स ग्रेटर साइज्ड ऑब्जेक्ट देन अ नॉर्मल ऑब्जेक्ट। यू टेल मी, ये माइक्रोस्कोप की वर्किंग समझ आई? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. हाँ, बोलो क्या कह रहे हो, दोबारा बताओ। अरे सो आई एम सेइंग कि यहाँ पर ये बाकी चीजें जो हैं ये एडजस्टमेंट के लिए है। जैसे फॉर एग्जांपल कभी तुमने एफएम चलाया है, म्यूजिक एफएम, तो उसमें हमारी एक ट्यूनिंग होती है। फॉर एग्जांपल 95 इज एन एफएम, तो 95 पे आएगा, इट विल नॉट कम एट 94, इट विल नॉट कम एट 98। तो 95 एफएम पे अगर मुझे एडजस्टमेंट करना है तो उसके लिए मुझे आई नीड नॉब, और ये नॉब मेरे को एडजस्ट करने में आती है कि अगर मेरे को ऑब्जेक्ट साफ नहीं दिखाई दे रही तो आई जस्ट एडजस्ट दिस नॉब, और इससे मेरी जो ऑब्जेक्ट है वो ट्यून हो जाएगी, इट विल गेट ट्यून, ठीक है। उसके अलावा ये बाकी चीजें जो बाकी की बॉडी है, इट इज मेड अप ऑफ मेटल, ये लोहे की बनी होती है, एंड दिस बॉडी सपोर्ट्स दिस होल सेटअप। जो सेटअप है यहाँ पे, इसको हम, और इसको क्या करता है, एक सपोर्ट दिस सेटअप। यू टेल मी, अभी लेंस क्लियर है? यस और नो? दिस माइक्रोस्कोप इज क्लियर टू यू? Yes, sir. ठीक है, दिवेश तुम्हें समझ आ रहा है? Yes, sir. ठीक है। अब अगर हम एक ये एक्टिविटी में हमें क्या रखा है कि हम एक स्किन को, थोड़ा सा स्किन को हम पील कर सकते हैं अनियन की, ठीक है। तो अनियन, एक अनियन को हम उसके अंदर से एक पतली सी लेयर को निकाल देते हैं, और उस पतली सी लेयर को अनियन की हमने माइक्रोस्कोप में रख दिया, इन दिस माइक्रोस्कोप, इस माइक्रोस्कोप के अंदर रख दिया। तो माइक्रोस्कोप से अगर तुम देखोगे तो तुम्हें डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा। यू विल सी कि अनियन के अंदर भी छोटे छोटे रूम्स बने हैं, एंड व्हाट डू वी कॉल दिस रूम्स? इस रूम्स को क्या बोलते हैं? रॉबर्ट ने क्या नाम दिया था? Sir, Cell. cells. sir. Yes, these are called cells. तो ये जो छोटे छोटे रूम्स हमें दिख रहे हैं इन दी माइक्रोस्कोप, these are actually cells, ठीक है। तो अब इस cells के अंदर भी, if you see inside these cells, you will find there are smaller dots. हर एक सेल के अंदर there are dots. और ये जो dots हैं इन cells के अंदर, these cells के अंदर these dots are called nucleus. So every cell, plant and animal cells usually have a nucleus. तो हर एक सेल के अंदर एक छोटी सी डॉट भी होती है, जो अगर हम उसे फिजिकली ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंड दिस डॉट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तुम्हें ये डायग्राम समझ में आया? यस और नो? Yes, sir. अच्छा, Yes. why do onion contain cells? अनियन के अंदर सेल क्यों है? Is onion living? Because it is also a plant. It is from a plant. Yes, it is derived from a plant. Yes, correct. क्योंकि वो प्लांट से आया है, तो प्लांट में वो लिविंग था प्लांट, तो प्लांट के अंदर सेल थे, और अनियन भी एक टाइम पे लिविंग था जब वो प्लांट का पार्ट था। Sir, it was a fruit of plant. Actually, it is not a fruit. It is technically a stem.
but it was a part of a plant, तो इसीलिए it is still having the cells. Very good, Divij. Is this clear to everyone कि onion के अंदर cell क्यों है? Yes, sir. If Yes. I use a plastic object और मैं plastic object को मैं microscope से देखूंगा, do you think I'll observe these rooms or cells? No, sir. Because plastic is Non-living. because plastic is non-living or non-living things do not have cells. So the thing is, can we say that cell? Can we say cell is actually a property? Those who have cells are living. So cells is a fundamental unit of life. Fundamental मतलब इसके बिना life नहीं है. Anything less than cell cannot be considered living. It is cell is a fundamental unit of life. इसका मतलब क्या है इस लाइन में? It means that anything less than a cell cannot be considered living. Cell is the smallest living organism. Yes. तो सेल के बिना लिविंग चीज नहीं होती. सेल के बिना लाइफ नहीं होती. सेल इज Excuse me, sir. yes. Sir, we can say that living organisms are made up of cells and non-living things are made up of atoms. No, the thing is atoms, सेल भी एटम भी बने होते हैं. एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर. मैं भी मैटर हूँ. मैं लिविंग ऊपर मैं मैटर हूँ. और मैटर किसके बने होते हैं? एटम्स के. ठीक है. तो इसीलिए हम ये नहीं बोल सकते कि living things are not made up of atoms. What we can say is non-living things are not made of cells. But both of living and non-living दोनों चीजें एटम से बनी होती हैं. Atom is a physical unit और cell is a biological unit. ठीक है. दिविज समझ आएगी ये बात या मैं समझाऊं दोबारा? Sir, समझ आ. सर आ गई समझ में. दिविज आ गया समझ? Yes, sir. ठीक है. तो एटम का सब कुछ बना होता है. हम भी एटम के बने. ठीक है. सेल भी एटम का बना है. सेल इज आल्सो मेड अप ऑफ एटम्स. ठीक है. अच्छा. So anything less than a cell cannot be considered living. That means all living organisms are composed. ये लिखना है. जो भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ तुम्हें भी लिखना है. ठीक है. All living organisms are composed of. Sir, that's why cell is known as the structural and functional unit of life. Yes, that I was saying कि I have to also say कि यहाँ पे एक टर्म और ऐड कर देंगे. वही जो चीज अभी प्रवीण ने बोली है कि cell is a structural and functional unit of life. Cell is structural and functional unit of life. The cell is structural as well as functional unit of life. Acha, what do you mean by this line, Praveen? Can you tell me? Sir, this line means that cell structures our body and it performs some important tasks which are necessary for the movement of the body or the working of a body. Okay. मतलब yes, it is close, but थोड़ा सा और accurate होना है आंसर. The thing is, yes. So Sir, can you repeat the question? I'm saying what is meant by this line? This line is saying cell is structural and functional unit of life, and question is saying explain. So what will you say? Sir, living organisms are called living on the basis of a few characteristics they have. So to act on to do these characteristics, to have these characteristics, they need to have a well developed body like excretory system and from where they can get food,
how to digest that food, and all the system needs to be developed. What is the relation with cell here that you have explained? The thing is, look, you are also correct, but you have not linked cell to your definition. You have explained me functions of life. You have explained me excretion, digestion, respiration, but you have not linked cell. So thoda sa part missing hai. The point we have to make here is that cell, first of all, it is structural unit because it makes up the living organism. Structural unit का मतलब होता है कि ये चीजों को बना रहा है, स्ट्रक्चर को बना रहा है. So So it is like the structural unit because it makes up the body of a living organism. And by functional unit I mean functional unit का मतलब ये है कि it performs the essential functions of a living organism. It is functional unit. Functional मतलब जो काम करती है. तो ना सिर्फ ये स्ट्रक्चर बनाती है बट ये काम भी करती है. So we will say it is functional unit because it performs certain functions that are essential for life. That are essential for life. Example, ऐसे कौन से प्रोसेस होते हैं? ऐसे प्रोसेस होते हैं digestion, respiration, excretion. ये सब सेल के बिना नहीं हो सकता. अगर किसी का सेल नहीं है तो डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन नहीं दिखा सकता. तो इज इट क्लियर हिमांशु, ईशान की स्ट्रक्चरल का मतलब क्या है और फंक्शनल का मतलब क्या है? साची? yes sir. ईशान? Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. ये सब नोट कर लिया सबने अभी तक जो मैंने लिखा? Yes, sir, noted. ठीक है. तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे. ठीक है. अब हम बात कर रहे हैं सेल के अंदर की बात करते हैं. ठीक है. ये सब हम बाद में पढ़ेंगे बिकॉज दिस इज समथिंग जब हमें स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा देन वी विल स्टडी दिस सेक्शन दैट इज मोर टू डू. उसके अलावा अभी हम एक पॉइंट पढ़ने वाले हैं that living organism can be classified on the basis of cells. So the thing is we can classify living organisms on the basis of cells. How do we classify it? You have to write it down. Living organisms can be classified on the basis of number of cells कैसे? How can we classify them? First is unicellular organism And multicellular. unicellular organism and the multicellular organism. Very good. Unicellular organism contain only one cell. इनके अंदर एक ही सेल होता है और वो भी लिविंग होता है. तो they have only one cell, okay, in their body. या फिर their cell is their body. They have only single cell that constitutes whole organism. पूरा ऑर्गेनिज्म ही एक सेल है. तो
इसके एग्जांपल्स देखते हैं. Let us see few examples of this. Let me show you a single cell organism. This organism is called amoeba. Sir, it has paramecium. This organism is called amoeba. Yes, paramecium is also an example. ये amoeba है. तो amoeba में देखो, there is only a single cell, right? तो ये जो single cell है, ये ही पूरा organism है. और you tell me, ये जो dot मुझे बीच में दिख रही है, what is this dot? Nucleus. Sir, nucleus. Dot is nucleus. Yes, very good. तो हमने बोला था हर एक सेल के अंदर एक डॉट होती है, वो डॉट या फिर वो स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस. तो ये जो पूरा ऑर्गेनिज्म है, ये पूरा एक ऑर्गेनिज्म है और ये पूरा एक सेल है. इज दिस स्ट्रक्चर क्लियर? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ही हमारे बैक्टीरिया, वी हैव बैक्टीरिया आल्सो. बैक्टीरिया आल्सो हैव ओनली सिंगल सेल. बैक्टीरिया के अंदर भी सिंगल सेल होते हैं, ठीक है. और वी कैन आल्सो से amoeba and paramecium. Very good answer, Kavish. Paramecium is also a single cell organism. Second type of organisms are multicell. Talking about multicellular organisms, they have more than one cell. इनके अंदर more than one cells होंगे. So I write it over here. You have to write whatever I am writing here. Okay. They have. I'll be checking your notes. They have many cells which group together in a single body. हमारे अंदर एक नहीं बहुत सारे सेल हैं. जैसे अनियन में तुमने देखा, अनियन में देयर आर मेनी सेल्स. तो अनियन या ह्यूमंस या प्लांट्स, ऑल द एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. कोई भी एनिमल और कोई भी सेल ऐसा नहीं है और ऐसा प्लांट नहीं है जो सिंगल सेल है, ठीक है. Excuse me, sir. एक प्लांट है दैट इज द एल्गी. हाँ बोलो. Sir, fungi is also the multicellular organism. Fungi are multi or uni. Fungi can also be unicellular. Yeast is a unicellular fungus. Alright. So, is this clear? How do we classify organism on the basis of their type, number of cells? Yes or no, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Clear. Yes, sir. Clear. ठीक है. अब बात आती है शेप्स एंड साइजेस. अपने ह्यूमन बॉडी के सेल थे. Let us see different cells from our body. तो ये जो सेल है, this cell is called neuron. इस सेल को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन. ये हमारी कहाँ पे प्रेजेंट होता है? नर्व्स. तो नर्व्स में ये सेल प्रेजेंट होता है एंड दिस सेल इज एक्चुअली, अगर मैं इनकी शेप बोलूं तो इसकी शेप होती है इलोंगेटेड. इलोंगेटेड का मतलब होता है लंबी शेप है. They are very long cells. They are elongated. Excuse me, sir. Yes. Sir, I was not able to write what were you saying. So, my You want connection to take a is screenshot? okay, sir. Take a screenshot और next time थोड़ा सा पास लिखना, ठीक है? Done? Yes, sir. Sir, अच्छा, I'm saying different types of cells हम देख रहे हैं और first type of cell is elongated. Elongated मतलब लंबा cell. This is the elongated cell. और blood cell की अगर हम बात करें तो blood cells होते हैं biconcave.
बाइकॉन्केव का मतलब होता है उनकी शेप कैसे होती है, कुछ ऐसे, मतलब ये दोनों साइड से थोड़े से दबे हुए होते हैं, दे आर प्रेस्ड फ्रॉम बोथ साइड, ऐसी शेप कहलाती है बाइकॉन्केव शेप, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं स्मूथ मसल सेल्स की बात करूं तो इनकी शेप होती है स्पिंडल शेप, इनकी शेप होती है स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप होती है जिसके अंदर जो एंड्स पे टेपर्ड होती है, दिस इज टेपर्ड एट द एंड, मतलब एंड्स पर थोड़ी सी पिचकी हुई होती है, ठीक है ना। तो बाइकॉन्केव कौन सी होती है, बाइकॉन्केव के अंदर यू कैन सी बाइकॉन्केव में सेंटर में तो दोनों साइड से दबा हुआ है, और जो हमारी स्पिंडल शेप है उसमें एंड्स पर ये क्या है, दबा हुआ है। तो ये दो डिफरेंट शेप्स हैं। वैसे यू डोंट नीड टू लर्न दीस शेप, ऐसे शेप लर्न करते बैठेंगे तो बहुत सारी शेप हो जाएंगी, यू वोंट बी able to understand, but you can see flat cell is a large cell and ovum is also a large cell, तो ये large size में मिलते हैं। और bone cell you can see it is asymmetric सा है, इसके अंदर कोई symmetry नहीं है, ठीक है। एंड देयर इज अ स्पर्म सेल दैट इज इन ह्यूमन मेल्स, या एनिमल मेल एनिमल्स में भी होता है स्पर्म एंड इज यूज्ड फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं दैट आर प्रेजेंट इन द बॉडी। लेबलिंग के लिए आ सकता है, यू कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम की विच सेल इट इज, और तुम्हें बस एक स्ट्रक्चर दे रखा है एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन सा सेल है, शेप याद करने की जरूरत नहीं। इज दिस आर दीस डायग्राम्स क्लियर, यस और नो? Yes, sir, clear. Yes, sir. Please. Yes, sir. Clear. ठीक है। Alright. So now we are talking about the size and shape of cell. We are talking about size and shape of cells. So listen, the shape and size of the cells are related to some specific function they perform. मतलब जो साइज एंड शेप होता है वो उनके फंक्शन पे डिपेंड करता है कि कुछ सेल्स लॉन्ग है, कुछ तो सेल्स जो है वो राउंड है, कुछ लार्ज है और कुछ स्मॉल है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। The thing is कि जो साइज एंड शेप क्यों वेरी करता है इन डिफरेंट सेल्स, यू कैन आस्क समवन a question कि why size and shape of cell vary and give examples, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कि जो साइज और शेप होता है वो डिपेंड करता है कि कौन सा फंक्शन सेल ने करना है। फॉर एग्जांपल, अगर इफ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ द नर्व सेल और न्यूरॉन, डू यू नो व्हाट फंक्शन न्यूरॉन या नर्व सेल परफॉर्म, या नर्व क्या परफॉर्म करता है? Sir, transporting, giving messages to the ट्रांसपोर्ट ऑफ मैसेजेस, यस वेरी गुड, करेक्ट। तो द थिंग इज जो हमारी नर्व्स होती हैं, नर्व्स हमारी मैसेजेस को लेके जाती है, मैसेजेस को एक ब्रेन से मैसेज को हार्ट तक लेके गए और हार्ट से वापस ब्रेन तक लेके गए। तो ये जो नर्व के सेल्स होते हैं इनका फंक्शन होता है टू परफॉर्म कंडक्शन, कंडक्शन ऑफ नर्व मैसेजेस या फिर इंपल्सेस बोलते हैं। सो द थिंग इज जो नर्व्स होती है या न्यूरॉन्स होते हैं जो हमने यहाँ पे बनाया है, ये स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ नर्व सेल। नर्व सेल हेल्प इन कंडक्शन ऑफ nerve impulses
or you can say messages. ये मैसेज लेके जाता है, मेरे ब्रेन तक मैसेज आ रहा है कि मुझे हाथ उठाना है। अब ये मेरे ब्रेन से हाथ तक सिग्नल कौन लेके आया, ये मैसेज कौन लेके आया, वो लेके आया नर्व का सेल। अब वो नर्व का सेल कौन है, न्यूरॉन, सेल ऑफ न्यूरॉन। तो द थिंग इज, अगर मैं बोलूं कि इसकी जो साइज है, इसका जो शेप है वो इलोंगेटेड क्यों है, क्योंकि इसको क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। Sir, can you repeat the question? मैं कह रहा हूं, अगर मैं बोलूं व्हाई इज नर्व सेल elongated, elongated क्यों है, तो मैं Sir, बोलूंगा because it performs. because it has to perform the function of conduction, और कंडक्शन के लिए उतना अच्छा रहेगा कि वो जितना डिस्टेंस तक वो ट्रैवल कर सकता है, तो जितना लंबा वो होगा उतना वो डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगा। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन हियर। ये लाइन कह रहे हैं कि जो सेल्स होते हैं उनकी शेप उनके फंक्शन पे डिपेंड करती है कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। I have given example that nerve has to conduct the impulses, so that is why it is better for them to have so elongated shape is helps them to conduct in better way. Conduct impulses or messages efficiently. तो ये बात समझ में आई तुम्हें, yes or no? ये लाइन भी लिखनी है इसके आंसर में। Is this clear to everyone? Yes, Yes. sir. हिमांशु, ईशान, सांची, कविश। Sir, Yes, sir. Yes, sir, clear. ठीक है, ईशान बोलो। ईशान चले गए। ऑलराइट, आगे ईशान। Sir, so mainly their shape and size vary on their function. Yes, मतलब they have different shapes and sizes because their shape and size is best for the best for the function that they perform. Clear? Sir, two more things can be there for their size and shape: the viscosity of the protoplasm and the surface tension. Viscosity of the cytoplasm and surface tension comes as a secondary thing. Thing is, अगर कोई चीज परफॉर्म करना है, कोई फंक्शन परफॉर्म करना है, हमारी बॉडी उसकी तरह इवॉल्व होती है। Our body evolves such that अगर मेरे पास आज हम अलग क्यों हैं प्रभु? Why are we different from other monkeys or other animals? Sir, because we are developed We organic. have develop मतलब evolve है ना? Biological term में we call it evolution. Yes. तो अगर कोई भी चीज इवॉल्व होती है, कोई भी चीज अपना शेप चेंज करती है ओवर द इयर्स, तो वो इसलिए करती है क्योंकि उसके लिए वो बेस्ट है। वी नो हाउ टू होल्ड अ पेन, बट अ मंकी डज नॉट नो हाउ टू होल्ड अ पेन। वी हैव डेवलप्ड मसल्स टू होल्ड अ पेन। तो द थिंग इज, वो चीजें जो साइटोप्लाज्म और जो तुम विस्कोसिटी की बात कर रहे हो, वो बाद में हो जाती है सो दैट उनकी शेप वैसी हो सके। बट द मेन रीजन व्हाई द शेप एंड साइज इज डिफरेंट is because उनको परफॉर्म करना था वो फंक्शन, और उनके लिए वो शेप है। Yes. Sir. Yes, sir. Okay, Ishan, I'll upload it. All right, but some organisms, on the other hand, like amoeba, have a changing shape. Amoeba जो होता है, amoeba does not have a fixed shape. Amoeba's shape can change. Sir, it is pseudopodia. Yes, it has pseudopodia. Thing is, an amoeba does not have a fixed shape. Amoeba unicellular है, और unicellular मतलब उसके सेल की शेप नहीं है। And this is best for amoeba. अमीबा के लिए ये बेस्ट है कि उसके पास कोई शेप ना हो। क्यों? क्योंकि वो अपनी शेप चेंज करके खाना लेता है। Sir, to gather food. What are you saying? बोलो। Sir, to gather food. Yes, it is best for amoeba to have a irregular shape because due to irregular shape, it is able to gather food from its surrounding
with the help of false appendages, जिन्हें हम बोलते हैं pseudopodia, very correctly said by Kavish. This is called pseudopodia. और अगर मैं इसको सिंपल टर्म में बोलूं, it is false legs. ये अपने false legs बना पाता है, ऐसे अपनी झूठी टांगे बना पाता है, जिसकी हेल्प से it is able to engulf the food particle completely. तो food particle को वो engulf कर लेता है and then this is called food vacuole. Sorry, I was in the way. So the thing is, amoeba क्या करता है? Amoeba हमारा देखो, amoeba की जो शेप है वो फिक्स नहीं है. वो फिक्स क्यों नहीं है? बिकॉज वो अपनी शेप को चेंज कर पाता है, और शेप चेंज करके इट इज एबल टू टेक फूड. सपोज उसके आसपास फूड आया, तो उस फूड को क्या कर लेता है? उसको कवर कर लेता है. उसको कवर करके it engulfs the food particle, और इस process में it is able to gain food inside its body and later on वो इसको digest कर लेगा. और excretion भी वो कुछ इसी तरीके के process से करता है. अब इस process का एक नाम भी होता है. If you want, I can tell you. This process is called phagocytosis. Yes, sir. This term is called phagocytosis. Phagocytosis is the property या फिर phenomena. Sir, I have a doubt. Yes, बोलो. Sir, if amoeba is a animal cell, so sir, but And amoeba is not animal; it is a protist. Protista है. हाँ बोलो. so it is not in animal or plant cell category. No, it is neither animal nor plant. We will be studying कि 5 kingdom में हमने सारे organisms को classify किया हुआ है. 2 kingdoms are plants and animals. बाकी भी kingdoms होते हैं Monera, Protista and Fungi. तो ये जो amoeba है, it is not an animal, it is a protist. Alright, Divesh? Okay, sir. Doubt clear हो गया तुम्हारा? ठीक है. Okay, sir. तो phagocytosis is the phenomena of engulfing. Engulf कर लेना मतलब किसी चीज को खा जाना. Engulfing a particle Sir, it is a part of endocytosis as well. with the help of pseudopodia. Okay, now tell me what is endocytosis? Prabal? Yes, sir. Sir, endocytosis is the intake of food materials by the cells through the plasma membrane. What is the opposite of endocytosis? Do you know? Sir, it is exocytosis. It is a process in which the food which is engulfed by the cell is taken out of the cell. Very good, Prabal. Very good. Also, can you tell me any cell of the body that shows phagocytosis? Sir, which shows phagocytosis. Yes. Sir, we can say leukocytes, white blood cells. Yes, white blood cells. So very good. The thing is, जो ये अमीबा कर रहा है, ये हमारी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स भी ऐसे करते हैं. मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स फाइंड द जर्म्स और जर्म्स को ऐसे एनगल्फ कर लेते हैं. बाय दिस प्रोसेस होगी फैगोसाइटोसिस, और उसको डाइजेस्ट करके उसको हार्मलेस बनाकर दे थ्रो इट आउट ऑफ द बॉडी. तो व्हाइट ब्लड सेल हमारी बॉडी में होते हैं, वो भी अमीबा की तरह करते हैं. अमीबा को खाना चाहिए होता है, वो इसलिए करता है. बट जो व्हाइट ब्लड सेल है वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो बाहर के जर्म्स या एजेंट से फाइट करना चाहते हैं जो हमारी बॉडी में कोई डिजीज कॉज कर सकते हैं. तो व्हाइट ब्लड सेल्स आल्सो शो दिस प्रॉपर्टी जो अमीबा दिखा रहा है. You tell me, is this phagocytosis clear? Yes or no, everyone? Yes, Pseudopodia as well. Yes, sir, clear. Yes, sir, clear. Okay. Kavish, clear? yes. साची, तुम्हारी आवाज साफ नहीं आ रही है. Either write in chat. Sir, can you write the names of the
two types of engulfing. processes. The thing Yes. is, it is not in our course. That is why I'm not making you write it. क्योंकि अगर तुम लिखोगे भी तो हो सकता है तुम्हारे टीचर से मार्क्स ना दे. But still, I tell you, phagocytosis में phagocytosis नहीं है. There are two types of movement in the cell. Endocytosis is engulfing, and exocytosis is like excreting. एंडोसाइटोसिस मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर ले जाना. एंडो मींस इनसाइड, एक्सो मीनिंग आउटसाइड. कोई चीज को अगर हम अंदर ले जाएं तो दिस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस. कोई सेल ले जाए दैट इज एंडोसाइटोसिस, और कोई सेल इसको बाहर कर दे दैट इज एक्सोसाइटोसिस. इज दिस क्लियर? Yes, sir, clear. Sir, it is called plateaucytosis. सॉरी क्या बोला तुमने? दिवेश फिर से बोलो. Sir, this process is called plateaucytosis. फैगोसाइटोसिस के अंदर ही है ये. फैगोसाइटोसिस इज एक्चुअली एंडोसाइटोसिस. एक्सोसाइटोसिस इज नॉट फैगोसाइटोसिस. ठीक है, एंडोसाइटोसिस होता है जब हम उसको सेल के अंदर ले. क्लियर दिवेश? Yes. अच्छा, give me 1 minute. Let me also have some diagrams to show you. Sir, there are two more types of endocytosis other than phagocytosis. Yes. Pinocytosis is there. Yes, sir. So podocytosis, which is known as cell drinking, and receptor-mediated endocytosis. Yes. All right. All right. Here you can see an animal cell. This is an animal cell. Yeah, animal cells are roughly spherical in shape. Usually they are spherical in shape. So this is a cut section जो हम इसके अंदर दिखा रहे हैं कि inside a cell क्या क्या होता है. तो सेल के अंदर जो मेजर डॉट, जो मेजर बिगर डॉट है, this is called, what is it called? Sir, nucleus. Yes. So this white region over here, जो white region है, इसको हम क्या बोलते हैं? This is called nucleus. क्या बोलते हैं? Nucleus. Nucleus के अंदर एक और डॉट है. Do you see this? Sir, This dot? nucleoid. Sir, nucleoid. Yes. This is called nucleoid. अभी हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे. Don't worry. But there is a nucleus, and nucleus के अंदर there is nucleoid. अब inside the cell there are many other parts. बहुत सारे और different parts हैं. You can see there, we can see a mitochondria. Cell के अंदर एक और छोटा part है. This is called mitochondria. Okay, and here you can see some other small organelles that are present inside the cell. So these cells have smaller parts inside. For example, this is an endoplasmic reticulum. This is called endoplasmic reticulum. ये सब चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर मैं ये दिखाना चाह रहा था कि सेल के अंदर भी चीजें होती हैं, एंड सेल के अंदर जो चीजें होती हैं, दे आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स. इनको क्या बोलते हैं? वी कॉल देम सेल ऑर्गेनेल्स. विल बी स्टडीइंग अबाउट दीस सेल ऑर्गेनेल्स इन नेक्स्ट क्लास. आल्सो सेल के अंदर ये जो मेम्ब्रेन होती है, यू कैन सी सेल को ये कवर कर रही है. दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्लाज्मा membrane. This is called plasma membrane, जो सेल को कवर करती है. So what did we study about in today's class? We studied about the cell, what is the cell, and we studied
कि सेल के अंदर एक और सर्कुलर पार्ट होता है, दैट इज द न्यूक्लियस। और हमने ये पढ़ा कि सेल इज प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग चीजों में प्रेजेंट होता है, एंड दैट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव सेल्स ओनली एक्सेप्ट जब वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव हुई चीज, जैसे अनियन, इट इज नाउ नॉन लिविंग but it was a part of a living system. We studied what is core, and we studied what is cellular apparatus के बारे में हम next class में पढ़ेंगे what cell comprises of. We studied there are two types of organism, unicellular and multicellular organism. Unicellular के examples देखें. Is this all clear to you? Yes or no, everyone? Yes, sir. Clear. Clear. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है होमवर्क में? Sir, what? तो कह रहा हूँ होमवर्क में क्या करें? लेट मी टेल यू सम होमवर्क क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट दिस क्वेश्चन, इसका आंसर बुक में मिलेगा तुम्हें। अभी मैंने सिर्फ दिस क्वेश्चन इज वन। क्वेश्चन है हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। ये वाला क्वेश्चन का आंसर तुम्हें मिलेगा, डायग्राम भी मिलेगा, वो पूरा लिखना है, बुक में ढूंढना, यू विल फाइंड इट। ठीक है, आल्सो Sir, first part of in-text questions we can do. okay, one second. Yes, sir. Yes, this question we can do that who discovered cell and why is the cell called structural and functional unit of life. So we have three questions that we have to do today. ठीक है, ये सारे क्वेश्चन क्लियर है सबको? Yes, sir. Clear. Yes. Type present in chat everyone. Which type present in chat? Okay. All right then. I'll see you in next class. Today is Friday. We'll see you on Monday. Bye, Bye. sir. Have a nice day. Bye bye. Bye, sir. Yes, sir.